Okay, now everyone just put your attendance. Okay, ठीक है. So now I am going to present the presentation, and it seems to be visible, is it? ठीक है, सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? चलो जल्दी से कंफर्म करो सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है. सो वी विल स्टार्ट. Okay, so now today is our last practice set of our syllabus. Okay, मतलब आज जो हम practice set लेने वाले हैं, that is the last practice set of our syllabus. After this we are going to solve problem sets. Okay, हर एक chapter के पीछे जो problem set दिया रहता है ना, so we will try to solve those practice sets in upcoming lectures. Okay, so today's lecture मे बी द प्रॉपर लास्ट लेक्चर ऑफ योर सिलेबस. ओके, मतलब सिलेबस तो तुम्हारा आज खत्म हो रहा है, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस बचते हैं या फिर रिवीजन रहेगी, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लासेस. इज इट ओके? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम we will just start. So see what we have seen in the last lecture. We have seen measures of central tendency. Okay, so measure of central tendency ये क्या होता है, central tendency ये क्या होता है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, बराबर. उसके बाद में ओके दैट्स फाइन. चलो, सो अ मीन. सो फर्स्ट थिंग वी लर्न इन द लास्ट लेक्चर दैट वाज मीन. ओके, मीन तो हमने पढ़ लिया. मीन यानी क्या? मीन इज नथिंग बट द एवरेज. ओके, सो मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आई होप आप लोगों को इसका आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा उसका रिवीजन करना चाहूंगा. ओके, सो दैट आप लोगों को आसानी हो जाए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में. ठीक है, सो for example, let us say this example is given. Example first is given, and they are asking us to find the mean. Find the mean of numbers 25, 30, 27, 23 and 25. So what we have to do, see, here are 5 numbers. 5 number है यहाँ पे, 1 2 3 4 5. So add them all and divide by 5. Okay, अगर यहाँ पे 6 number रहते तो what we would have done, we would have added the 6 numbers and divide by 6. So this is how we find out the mean. ठीक है, अगर डेटा बड़ा दिया रहता है, लाइक दिस इज द डेटा फॉर ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट्स. ओके, सो 35 स्टूडेंट्स का अगर हमें मीन निकालना है तो we will form a table like this and then we will find out the mean. Okay, so mean के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है in the last class. Now we will see what is median. Okay, the scores arranged in ascending or descending order. The number appearing exactly at the middle position in this order is known as median of the observations. If the number of observations in even, then median is the average of middle two numbers. Okay, so definition में ही आपको अच्छा सा आइडिया आ गया होगा कि median exactly होता क्या है. So इसे और अच्छे से समझने के लिए what we will do, we will just take examples. Okay, so first example is find the median of 54, 63, 66, 72, 98, 87, 92. So first step we have to do, what we have to do, we have to arrange these given numbers in their ascending order. Okay, so ascending order में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, that is 54. So 54 लिख लिया. उसके बाद में आता है 63, बाद में 66, 72, 78. Okay, 78 is given here. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 numbers are there. 72 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है. ओके, ये जो 98 यहाँ पे दिया है ना, तो गलती से ये 98 नहीं, ये 78 है. ओके, सो 78 इज दिस. सो इसे 78 पकड़ लीजिए. एंड 87 एंड 92, मतलब कि जो हमें नंबर्स दिए हैं, दीज आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है. सो देखिए कौन सा नंबर मिडल में आ रहा है. सी 72 इज इन द मिडल. 72 के राइट में भी 3 नंबर्स है, लेफ्ट में भी 3 नंबर्स. दैट मींस 72 इज इन द मिडल पोजीशन.
So what is our median? Our median should be 72. Okay, so this is how we find out median. मतलब कि जो नंबर मिडल में रहेगा या फिर सेंटर में रहेगा आफ्टर अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, so that will be our mean. So it will be median. Okay, now let's take the second example. Find the median of the data 30, 25, 32, 23, 42, 36, 40, 33, 21 and 43. Okay, so what we have to do, first of all we have to arrange them in their ascending order. So अरेंज कर लिया, यहाँ पे देख लीजिए आप अरेंज किस तरह से करना है ये आपको अच्छे से पता है. सो 21, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 40, 42 एंड 43. तो हमने इसको अरेंज कर लिया. नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर दिस? ओके, तो ये कितने नंबर्स है हमें देखना पड़ेगा. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 नंबर्स है. सो 10 नंबर्स देखिए, अगर गिवन नंबर्स आर ऑड इन नंबर, मतलब कि वो ऑड है, लाइक 1 या फिर 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं, सो इसका हम जो मिडल वाला नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर थे? 7 नंबर्स थे. तो 7 का नंबर मिडल वाला नंबर कौन सा आएगा? फोर्थ नंबर वाला जो नंबर है दैट विल बी द मिडल नंबर, क्योंकि उसके राइट साइड में भी 3 रहेंगे और लेफ्ट साइड में भी तीन नंबर रहेंगे. लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है. ओके, यहाँ पे कितने नंबर से दिए गए हैं हमें? 3 and 3 6 10 नंबर्स आर देयर. ओके, सो मिडल 2 नंबर्स हमें लेने हैं. सी, इसके लेफ्ट में भी 4 बाकी है, राइट में भी 4 बाकी. सो मिडल 2 नंबर्स हमने pick up कर लिया, and what we will do, we will add them and divide by 2. So 32 plus 33, that is 65, divided by 2, that is 32.5 is the median of this given data. Okay, median of this given data is 32.5. So दोनों एग्जाम्पल में क्या है, हमें समझ में आ गया कि किस तरह से डील करना है. Okay, so I think it is not that much hard, is it? Now लेट्स रिकॉल में भी वही है कि अगर n इज ऑड, ओके, तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे. इफ n इज इवन, तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे. सो इट इज वेरी इजी. वी वोंट वेस्ट मच ऑफ अ टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर. लेट्स रिकॉल सेक्शन. नाउ द थर्ड टाइप और द थर्ड point is mode. What is mode? The score which is repeated maximum number of times in the given data is known as the mode of the data. So it is the easiest one, I think. Okay, इसमें हमें कुछ भी what we can say अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, हम देख के ही बता सकते हैं. लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाट वी विल डू, वी विल अरेंज देम इन देयर असेंडिंग ऑर्डर. सी, ये हमें डेटा दिया गया है 90, 55, 67, 55, 75, 75, 40, 35, 55 and 95. So this data is given to us. We arrange that data in ascending order. Okay, so इस यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन से दिखाई देगा कि 55 is repeated 3 times, 72 is repeated 2 times, and all other numbers are occurring only once. Okay, मतलब एक ही बार वो numbers हमें दिखाई दे रहे हैं. So what will be our mode? Our mode will be 55. मतलब कि जो नंबर ज्यादा बार आया है या फिर बार बार आ रहा है, that is the our mode. Now देखो यहाँ पे let's see the second example. The ages of workers in a certain factory are given in the following table. Okay, so कुछ वर्कर्स हैं जिनका की एज हमें यहाँ पे दिया गया है. एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का एज हमें यहाँ पे दिया गया है. सो 5 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका की एज है 19 ईयर्स, 15 वर्कर्स ऐसे हैं कि जिनका एज है 21 ईयर्स, 13 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका एज है 25, 15 वर्कर्स इज हैविंग 27 years of their age, and 7 वर्कर्स का एज है 30 years. सो देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन से उम्र के या फिर कौन से एज के वर्कर्स ज्यादा है फैक्ट्री में. सो ऑब्वियसली वी कैन से 21 और 27 जो है वो हमारा मोड रहेगा. अभी यहाँ पे मोड में हमने उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है मीडियन में. ओके, नॉट मोड में. तो यहाँ पे दोनों भी मोड रहेंगे. मोड विल बी 21 एंड 27. यहाँ पे गलती से प्रिंट मिस्टेक से 29 लिखा है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए. The mode will be 21 and 27. So it will be 27 here also. अगर यहाँ पे 27 आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा 29. Okay, so this will be like it. So mode, median
and mean. So these are the three things that we have to calculate in this practice set. Okay, so let's start. So yield of a soybean per acre in a quintal in Mukund's field for 7 years was 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9. Find the mean of yield per year. Now हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट करना है. So who will try? चलो ट्राई करो, मीन निकालने की कोशिश करो. मीन इज वेरी इजी. ओके, सो आप लोग ट्राई कीजिए, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा आफ्टर दैट. ओके, चलो ट्राई इट एवरीवन. एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डेटा. सो यहाँ पे आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एड देम एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशंस और द नंबर ऑफ गिवन नंबर्स देयर. सो सी, कितने नंबर दिए हैं हमें? 7 दिए हैं. 7 ईयर्स का डेटा दिया है. तो 10 plus 7 is 17. 17 plus 5 is 22. 22 plus 3 is 26. Is it? No, 25 it is. 25 plus 9, 34. 34 plus 6, 40. And 40 plus 9, that is 49. मतलब कि इनकी एडिशन कितनी हुई? 49 हुई. तो 49 डिवाइड बाय हम कितना करेंगे? 7 करेंगे. So what will be our answer? 7 will be the mean of given data. 7 will be the mean of given data. Is that okay, everyone? चलो बताओ कैसे मैंने 7 निकाला, कैसे 49 निकाला. सब लोगों को समझ में आ रहा है? Okay, I need quick responses from you people. Everyone should respond quickly. Good, चलो, understood. Okay, so अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सेकंड करो. चलो, find the median. It is the easiest question of this practice set. सबसे आसान क्वेश्चन यही है. What it should be? Median क्या है? What is median? Try it. Find the median of the observations. 59, 75, 68, 70, 74, 75, 80. नोटबुक साथ में लेके बैठना है, तभी आपको आंसर जल्दी जल्दी निकाल पाओगे आप लोग. ओके, सिर्फ मोबाइल लेके बैठने से पढ़ाई नहीं होती है. इतना टाइम मीडियन निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. मीडियन शुड बी कैलकुलेटेड इन 10 to 15 seconds. ओके ओके, ठीक है. ओके, विल एडजस्ट मैत्रेय. ठीक है. सो फाइंड आउट मीडियन. इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? समझ में नहीं आया क्या मीडियन क्या है? तो क्या करना है? इस डेटा को रीअरेंज करना है. रीअरेंज किस तरह से करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे. सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें बताइए? आप लोग ही बताएंगे. सबसे छोटा नंबर क्या है? 59 है. सो लिख लीजिए 59. 59 से बड़ा क्या है यहाँ पे? देखिए 68 है. बराबर. 68 के बाद क्या है बड़ा? 70 है. 70 के बाद में क्या है? 74. सॉरी, इट शुड बी 74. उसके बाद में 75. 75 ऑकरिंग 2 टाइम्स, तो हमें दोनों टाइम लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसे. एंड 80. इज इट? सो कितने नंबर से टोटल कैलकुलेट करो? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आर देयर. सो चौथे नंबर का जो है वो रहेगा मीडियन. 74 विल बी मीडियन. राइट साइड में 3 नंबर्स रहेंगे, लेफ्ट साइड में 3 नंबर्स रहेंगे. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. These are completely different things and all of them are easy. Okay, so 74 median आया. सब लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखो, हम आगे बढ़ेंगे. गुड, ठीक है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? मोड निकालना है. द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 7 students in the mathematics given
मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ दीज मार्क्स। अब इसका मोड निकालना है हमें, ट्राई एंड फाइंड आउट मोड। मोड यानी कि क्या, सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है दैट इज आवर मोड। सो व्हाट इज मोड ऑफ दिस गिवन डेटा? ओके, द आंसर शुड बी क्विकली गिवन। मीडियन और मोड का आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, मीन का आंसर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है 100। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? द्विजेश ने सिर्फ आंसर दिया है 100 शुड बी द मोड। चलिए सब लोग एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए कि सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ओके, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। चलो लिखिए सब लोग। ओके, धीरज को आवाज आ रही है, द्विजेश को भी, अनुज, जय। ओके, ऋषि तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? अभिज्ञा को भी आवाज आ रही है। ओके, हाँ तो फिर आवाज आ रही है तो यस लिखना है चैट बॉक्स में। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट मोड हियर मैत्रेय। ओके, मोड यानी कि क्या, जो कोई भी नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है ना, सो उसे हम मोड कहते हैं। ओके, ठीक है, चलो। सो अभी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो अभी मुझे सब लोग बताएंगे कि आप में से सब लोगों में से मीन, मीडियन और मोड किस किस को समझ में आया। जिसको समझ में आया वो तीनों नाम लिखेंगे, मीन, मीडियन और मोड लिखेंगे। ओके, ठीक है। सो जिन लोगों को जो चीज समझ में नहीं आई है वो नहीं लिखेंगे, जो समझ में आया वही लिखेंगे। मीन, मीडियन, मोड। बताइए आप लोगों को इन तीन में से क्या क्या समझ में आया? मैत्रेय को मोड समझ में आया, मीन मीडियम नहीं आया समझ में। सभी तीनों नाम लिखने हैं। अगर आपको तीनों समझ में आए हैं तो तीनों नाम लिखने हैं। ओके, मीन, मोड। ओके, अनुज को मीडियन और मोड, मीन नहीं समझ में आया है। ठीक है, बाकी लोगों को बताइए। द्विजेश को मीन, मीडियन और मोड तीनों समझ में आए। अभिज्ञा को भी मीडियन और मोड समझ में आए। ऋषि को भी मीडियन, मीन और मोड तीनों समझ में आए। ठीक है, ओके। सो सी क्विकली मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। किस तरह से रिवाइज करेंगे हम? इन्हीं तीन क्वेश्चन की मदद से रिवाइज करेंगे। ये तीन क्वेश्चन जो है, पहला है मीन का, दूसरा है मीडियन का, तीसरा है मोड का। ओके, सो मीन यानी कि क्या, देखो हमें डेटा दिया गया है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, रिमेंबर वी आर फाइंडिंग मीन। ओके, अभी मीन के लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सो मीन निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द गिवन डेटा, मतलब इन सब की एडिशन कर दो। इन सब की एडिशन कर दोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। करके देख लेना। ओके, इन सब की एडिशन कितनी आएगी, 49 आएगी। और 49 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। क्यों 7 से डिवाइड किया? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 सात नंबर्स दिए गए हैं, मतलब उन 7 नंबर्स की हमने एडिशन की और डिवाइड बाय 7 कर दिया। अगर यहाँ पे 8 नंबर्स दिए रहते तो उन 8 नंबर को हम ऐड करते और 8 से डिवाइड करते। सो दैट इज मीन। Okay, so mean is clear. Now let's come to the median. Okay, mean is clear. Now come to the median. Median is what? See, here is given data. Data दिया है तो इसे पहले हमें क्या करना है, median में हमें अरेंज करना है डेटा इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे हम, 59 7। सो ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आई होप आप लोगों को अरेंज करना आता है। ओके, 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दीज। उसके बाद में क्या आएगा, 68 आएगा। करो सब लोग, रीअरेंज करो और चैट बॉक्स में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। 59 के बाद 68 आएगा, 68 के बाद 70 आएगा। ओके, 70 के बाद में आएगा 74। उसके बाद में 75 दो टाइम्स है, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। सो 75 लिख लिया हमने यहाँ पे, फिर से 75 लिखना पड़ेगा। ओके, मैत्रेय ने लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज 80। ओके, सो हमने इसे
अरेंज कर लिया। ओके गुड, सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। नाउ सी कितने नंबर से यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आर देयर, बराबर। तो 7 नंबर्स में बीच का नंबर कौन सा रहेगा, मिडल में नंबर कौन सा रहेगा, द नंबर फोर्थ, मतलब फोर्थ नंबर जो है वो मिडल में रहेगा, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर विल बी इन मिडल, इज इट सी, नहीं 3.5 नहीं, देखो मैत्रेय 3.5 नहीं आएगा, वी आर लुकिंग फॉर द मीडियन नाउ। मीन को भूल जाओ, अभी मीन का कंसेप्ट यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सो 7 नंबर्स दिए हैं, 7 में से चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर पे जो नंबर है, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में हमें कौन सा नंबर मिलता है मिडल में। सो इसके लेफ्ट में भी 3 है और राइट में भी 3 नंबर से, 75 75 80 एंड 70 68 एंड 59। सो राइट में भी 3, लेफ्ट में भी 3, मतलब कि 74 क्या है, मिडल में है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मीडियन कहेंगे। मतलब after arranging the data, the number which is in middle, that is our median. Okay, now I'll give you one example, okay, and you try to solve it. ओके, मीन एंड मीडियम मैत्रेय को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सो इस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों से चाहिए, ओके। आप लोग चैट बॉक्स में कुछ लिखते ही नहीं है तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ओके। यू हैव टू कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स। सो सी द व्हाइट बोर्ड, अभी मैं आपको एक डेटा दूंगा और आपको मैं बोलूंगा कि उसका क्या निकालिए आप, मीडियन निकालिए, ओके, मीडियन निकालना है। सो डेटा देख लीजिए, 11 22, ओके, 43 45 57, ओके, 69 and 84. So this is our given data. What is the median? What is the median? 45 it should be ना, is it? See 45, तो इसके राइट में भी 3 है, लेफ्ट में भी 3 है, ठीक है। सो ये हुआ 45। नाउ मैं थोड़ा सा इसको अभी हार्ड कर देता हूं, ठीक है। सो अभी क्या है हमारा मीडियन, बताइए। 6 नंबर्स आर देयर, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो मिडल में तो कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, नो इट, ओके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, ओके। यहाँ पे 45 है, इसलिए आप मतलब बीच में 44 बोल रहे हैं, ठीक है। सो मैं इस नंबर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 45 की जगह पे लेटर से 49 है। सो नाउ व्हाट इज द मीडियन, कैन यू टेल, व्हाट इज द मीडियन। देखिए इस केस में क्या करना है, पहले हमें 7 नंबर्स दिए गए थे, 7 नंबर्स में से 3 नंबर हमने लेफ्ट में छोड़ दिए, 3 नंबर राइट में छोड़ दिए, जो बीच में रहा दैट वाज आवर मीडियन, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नहीं दो नहीं आएंगे, मीडियन कभी भी दो नहीं आएंगे, ठीक है। सो सी दिस इज, दीज 2 नंबर्स आर देयर, सो लेफ्ट में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, राइट में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 43 प्लस 49 कितना हुआ, 92 हुआ, ओके। 92 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना हुआ, 46 ना, 46 आई थिंक, इज इट, 46 should be the median of this given data, समझ में आया। सो दिस शुड बी मीडियन, मतलब दोनों टाइप में हमें मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करना है ये समझ में आना चाहिए, ओके। चलिए, सो सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आई थिंक, एक्सेप्ट धीरज, धीरज ओके, धीरज ने भी लिखा है 45, गुड। चलो, सो दिस इज मीडियन। अभी मीन आपको समझ में आया। अगर मैं आपको मीन निकालने को बोलता तो मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप इन सब सब नंबर्स को ऐड कर देते, ओके। यू विल ऐड ऑल दीज नंबर्स, इन सब का एडिशन करना है और डिवाइड बाय 6 करना है, दैट इज मीन, ओके। मीन समझ में आया। उसके बाद में मीडियन, मैंने बोला मीडियन कैसे, बीच का एक अगर नंबर है तो वही हमारा मीडियन रहेगा। अगर बीच में कोई नंबर नहीं आता है, बीच में 2 नंबर्स आते हैं, तो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारा मीडियन रहेगा। नाउ व्हाट इज मोड, मोड इज द नंबर विच इज रिपीटेड मोस्ट टाइम्स, ओके, मतलब ज्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा दैट विल बी आवर मोड। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा, थर्ड वन, बताइए, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ दिस डेटा, 100, इज इट 100,
करेक्ट, वेरी गुड. चलो, सो दिस शुड बी लाइक 8. एंड नाउ ओके, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. अभी हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो. फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड द मीन ऑफ द मंथली सैलरी. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? मीन. तो मीन के लिए क्या करना पड़ता है हमें? इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे और हम डिवाइड किससे करेंगे? 30 से डिवाइड करेंगे. वाई 30? बिकॉज टोटल नंबर आर 30. सो हम ऐड किस तरह से करेंगे? देखो, ये 5000 है तो मैं इसको 5 ही पकड़ लेता हूँ. 5 + 7 हाउ मच? 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 23 26 29 32 40 44 48 57 60 65 70 74 78 78 के बाद में 81 86 91 97 97 के बाद में कितना? 105 108 111 117 124 131 137 143 एंड 147. सो 147 और इन पे मैं लगा दूंगा 3 0. ठीक है, तो मैंने इस सब डेटा को ऐड कर लिया. ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया. समझ में आया मैंने किस तरह से एडिशन की? समझ में आया? ओके. सो मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा? 30 से डिवाइड करूंगा. गुड. चलो, सो 30 से डिवाइड करना है तो व्हाट वी विल डू? ये 0 गया, ये 0 गया. इज इट? ओके. 14700 डिवाइड बाय 3. करेक्ट. नाउ 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. सो 3 यहाँ पे हमें 4 आया, यहाँ पे 12. 14 में से 12 गया, बचा कितना? 2. नाउ 3 9s are 27. अभी 27 हुआ ना यहाँ पे, तो 27 मतलब कि 3 9s are 27 हुआ. और ये बाकी 2 0 जो है वो एज इट इज. सो व्हाट विल बी आवर मीन? 4900 विल बी आवर मीन. एज इजी एज दिस. इज इट? चलिए, द्विजेश और मैत्रेय छोड़ के बाकी लोग बताइए, आप लोगों को समझ में आया? ओके. अनुज, धीरज, जय, सबका नाम लेना पड़ेगा क्या? अविघ्ना, ऋषि. ओके, चलो ठीक है. सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट and let's take a next question. In a basket there are 10 tomatoes. The weight of each of these tomatoes in grams is as follows. So हमें वेट दिया गया है हर एक टोमेटो का, हमें मीडियन निकालना है. वेरी इजी. चलो करो. पहली स्टेप क्या है मीडियन निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए पहली स्टेप है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके. सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना है तो देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? मुझे तो 50 दिख रहा है. ओके, सो 50 इज देयर. आफ्टर दैट 50 के बाद में क्या आता है? आई थिंक 65 इज देयर. करेक्ट. 65? नो, इट शुड बी 60 ना. अगर मैं गलत जा रहा हूं तो आप लोग मुझे बताइए. देखिए 50 के बाद में यहाँ पे 60 है, मैं 65 बोल रहा था. सो 60. ओके, वैसे बताना है. चलो, 60 के बाद में क्या आता है? 65 आता है. 65 के बाद में 70 है. 70 दो बार है, ये भी हमें नहीं भूलना है. ओके, 70 इज 2 टाइम्स. सो 70 दो बार हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे. नाउ इसके बाद में क्या आता है? 70 के बाद में आता है 80. जो हमने नंबर लिख लिया ना, हम उसे अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमने ये नंबर लिख लिया है. तो कितने नंबर लिखे हमें? 1 2 3 4 5. 5 नंबर्स लिखे, लेकिन मैंने अंडरलाइन किया है 4 ही नंबर को. ठीक है, हो गया. तो 70 के बाद में क्या आता है? 70 के बाद में आना चाहिए 80. बराबर. तो मैंने 80 को भी यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया. उसके बाद में आता है 85. सो 85 भी लिख लिया और इसे यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया. नाउ 90 90 एंड 95 आर देयर. 90 एंड 95. तो हमने अरेंज तो कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द मीडियन. किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पहले नंबर गिन दो, कितने नंबर्स है? 70 इज मीडियन. ओके, लेट्स ट्राई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 नंबर से, तो 9 नंबर से यानी कि 4 राइट साइड के छोड़ दो और 4 लेफ्ट साइड के छोड़ दो, तो जो बीच में है वो कितना है? 70 है. तो 70 शुड बी द मीडियन.
ओके, 70 शुड बी द मीडियन। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड, इज इट 9? What are you talking about, Maitreya? Okay, there were 10 tomatoes. 10 tomatoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 10 भी है, तो बीच में क्या आएंगे? 70 70 ही आ रहे हैं ना दो बार। सो 70 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो फिर भी 70 ही आएगा। इज इट? ठीक है, तो 70 ही आना चाहिए, आई होप। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो 70 ही आंसर है। ठीक है। नाउ अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस, 5, 4, 0, 2, 2, 4, 4, 3, 3। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, दिस इज द टेस्ट फॉर एवरीवन। तो सब लोगों ने क्या करना है, 2 मिनट का समय लेना है और यहाँ पे चैट बॉक्स में अच्छे से लिखना है। पहले क्या लिखेंगे आप? मीन लिखेंगे, मीन क्या आएगा वो लिखेंगे। ओके, उसके बाद में मीडियन और उसके बाद में मोड, ऐसे तीनों एक साथ लिख के मैसेज सेंड कीजिए चैट बॉक्स में। ओके, वन बाय वन नहीं सेंड करेगा कोई भी। अगर आपको नहीं आता है, कोई मीन नहीं आता है, मीडियन नहीं आता है, तो लीव इट ब्लैंक। लेकिन ऐसे ऐसे फॉर्मेट में मुझे मैसेज आना चाहिए चैट बॉक्स में, मीन, मीडियन एंड मोड। टेक योर 2 मिनट्स टाइम एंड ट्राई टू कैलकुलेट। नाउ मैं यहाँ पे आपको इरेज करके देता हूँ जिससे कि आपको डेटा अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, find mean, median and mode of the data. This is the data. Okay, I am waiting for your messages. You have time of 2 minutes. Try it. ओके, तो मैत्रेय ने आंसर दिया है मीन इज 3, मीडियन इज 3 एंड मोड इज 4। द्विजेश ने आंसर दिया है मीन इज 3, मीडियन इज 2 एंड मोड इज 4। ओके, so see what are the other answers. Okay, Dheeraj is also saying मीन इज 3, मीडियन इज 3, मोड इज 4। अनुज का कुछ अलग आया है थोड़ा सा, मीडियन इज 2, मीन इज 3, मोड इज 4। सो मीन इज 3, मीडियन इज 3 एंड मोड इज 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आप लोगों का गलती कहाँ पे हुआ है? आई थिंक मीडियन में गलती हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। ओके, द्विजेश का भी और अनुज का भी मीडियन गलत आया है, तो सिर्फ हम मीडियन ही निकालेंगे। ओके, मीन और मोड जो है आप लोगों ने अच्छे से निकाल लिया है, तो सबका मीन और मीडियन बराबर आया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फाइंड आउट द मीडियन। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? अरेंज देम इन देयर ascending orders. So first is 0, after that 2 repeated 2 times, so 2, 2. Okay, after that 3, 3, after that 4, 4 and 4, and the last one is 5। ठीक है, जो जो मैंने लिखा है आई थिंक सही है। लेट मी जस्ट चेक अगेन। ओके, so how many number are there? 9 numbers are there। Okay, yeah, you should arrange it। see, don't do this mistake, you should arrange it। arrange करने के पहले आप मीडियन
और मोड निकालेंगे ही नहीं, मीन में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन और मोड में अरेंज करने की जरूरत पड़ती है। सो 9 है, तो पांचवें नंबर का जो रहेगा दैट विल बी सिंपली आवर मीडियन। 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ, so this is our median. Okay, so Anuj, तुम्हारा भी आई थिंक गलत आया है, सो यू ऑल्सो आई थिंक डिडंट अरेंज। अनुज तू अरेंज केलं होतंस का? असेंडिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज केलं होतंस अनुज? नो, ओके, सो ते विसरायचं नाही, ओके, अरेंज करायचंच, गुड, चला ठीक आहे, अरेंज करूनच आपल्याला, आणि मोड काढताना पण तुम्ही अरेंज करायचं, ओके, मोड काढताना पण तुम्हाला अरेंज करायचं। आता इथे 9 नंबर्स आहेत म्हणून तुम्हाला वाटतं यहाँ पे 9 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि इट इज इजी, लेकिन यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि इस डेटा का मोड निकालिए, तो किस तरह से निकालेंगे आप? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। सो यू शुड अरेंज देम, अरेंज करने के बाद में आपको समझ में आता है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ओके, चलो, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। The calculated mean of 50 observations was 80. It was later discovered that the observation 19 was recorded by mistake as a 91. What was the correct mean? Okay, so now this is very interesting question. अगर आपको मीन का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आप इंजॉय करेंगे। ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन देख लीजिए। दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 80। तो हम क्या करेंगे, उन 50 ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, ऐड 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 करेंगे, बराबर, और डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, 50 से करेंगे। व्हाई? बिकॉज 50 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, इज इट, 50 ऑब्जर्वेशंस, तो हमें क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। तो मीन कितना है, 80 है, ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? ये मैंने कैसे लिखा, ये जो मैंने प्लस 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 का सिंबल लिखा है दैट इज द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि कुछ तो डेटा है जिसको कि हमने ऐड किया है, हमें पता नहीं है कि वो डेटा क्या है, लेकिन उसका मीन हमें पता है। ओके, 80 इज द मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 50, सो एडिशन तो हमें दी गई नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसे क्या कंसिडर करता हूं, दिस एडिशन इज लेट अस सपोज एक्स, सो एक्स बाय 50 इज इक्वल्स टू 80। ओके, इज दैट ओके? नाउ एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए, एक्स की वैल्यू इज, अगर मैं 50 को यहां पे भेज दूं तो एक्स विल बी इक्वल टू 4000। ओके, एक्स विल बी 4000, समझ रहे हो, एक एक्स विल बी 4000, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, देखो, ओके, तो मैं यहां पे ये वाइप आउट कर लेता हूं, एंड one of the observations was removed from the data, hence, oh sorry, I'm reading something else, so this is, I think it was later discovered that the observation 19 was recorded by mistake as a 91. What was the correct mean? मतलब वो जो 50 ऑब्जर्वेशंस थे, ओके, जो 50 ऑब्जर्वेशंस थे उनकी एडिशन कितनी आएगी, 4000 आएगी, ओके, जो, और इसका मोड कितना आएगा, सॉरी मीन कितना आएगा, 80 आएगा जो हमें डेटा में दिया गया है। सो उनकी एडिशन इज 4000, लेकिन एडिशन 4000 कब है, जब हमने 19 की जगह पे 91 लिखा है। ओके, मतलब गलती से एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 19 था, तो उस ऑब्जर्वेशन की जगह पे हमने गलती से 91 लिख दिया, तो तब जाके हमारी जो एडिशन है वो आई 4000। अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो, इस 91 को निकाल देंगे, 91 को मैंने यहां से निकाल दिया। ओके, सो आई रिमूव 91 फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, सो इट शुड बी 3909। ओके, तो 3909, तो ये जो एडिशन है वो कितने नंबर्स की है, 49 नंबर्स की है, बचे हुए नंबर्स की, बराबर। जो हमने गलत लिखा था ना, 19 जो ऑब्जर्वेशन हमने, या फिर 19 जो हमने ऐड किया था वो हमने गलत लिखा था, तो मैंने उसको निकाल दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सी 19 गलत सही है, तो 19 यहाँ पे फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ अगेन दिस इज द एडिशन ऑफ 50 नंबर्स एंड करेक्ट 50 नंबर्स। ओके, सो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, एक्स की वैल्यू है आई हमारी 3928। ओके, 3928 हमारी वैल्यू आई। तो 3928 को अगर आप फिर से 50 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी करेक्ट मीन। वेरी गुड मैत्रेय, 3928 डिवाइड बाय 50 विल बी द करेक्ट मीन। सो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। सो इसकी वैल्यू जो है वो आती है समथिंग अराउंड
78.56। ओके, सो जो करेक्ट मीन हमारा है वो क्या आएगा, 78.56। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेट पे, 78.56 विल बी द करेक्ट मीन। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आया है कि हमने क्या क्या किया है। ओके, चलो सब लोग कंफर्मेशन दो, सच्ची सच्ची बताना। ओके, अगर समझ में आया है तो समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। चलो एवरीवन। ओके, धीरज, ब्रिजेश, गुड। ओके, चलो 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 जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। गुड, ठीक। ओके, आई थिंक that was a very interesting example, is it? नाउ ट्राई करना, घर पर भी आप ट्राई कीजिए। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। Following 10 observations are arranged in ascending order as follows. If the median of the data is 11, find the value of x. Very easy. See, क्वेश्चन 8, एक हमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और बताया भी है कि इसका मीडियन कितना है, 11 है। सो 10 अगर ऑब्जर्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ता है, मिडल के 2 नंबर लेने पड़ते हैं। ओके, 10 है ना, यहाँ पे 9 होता तो हम क्या लेते, मिडल का एक ही नंबर लेते, लेकिन यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है तो मिडल के 2 लेंगे। सो विच वी विल टेक, सी, leave this 4 and leave this 4, take these 2. So these 2, x plus 1, this is 1 plus x plus 3, डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, 2 करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मीडियन आएगा जो कि हमें दिया गया है, कितना है, 11 है। ओके, सो ये 2 उधर चला गया तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 22 आएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, देखो इस 4 को अगर मैं यहाँ पे भेज देता हूं तो यहाँ पे कितना रहेगा, 22 माइनस 4 दैट इज 18। सो मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ 22 की जगह पे। सो 2x इज इक्वल्स टू 18 है तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 9। ओके, देखो मैत्रेय ने तो यहाँ पे कर भी लिया है चैट बॉक्स में, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 22। सो 2x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 18। सो x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो यू हैव टू इन्वॉल्व लाइक दिस, मतलब आप लोगों को इस तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आइदर यू शुड बी डूइंग ऑन द नोटबुक और इन द चैट बॉक्स। ओके, यू शुड बी एक्टिव। सो x इज 9, तो हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने वो कर ली। यहाँ पे देखो, वेयर इज इट, सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही हमारा क्वेश्चन था तो हमने वो सॉल्व कर लिया। नाउ द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20, आउट ऑफ विच मीन ऑफ first 18 observations is 15 and the mean of last 18 observations is 25. Find the 18th observation. Okay, so this is also very interesting question। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जो हमें दिया है मतलब कि जो हमें फॉर्मूलाज वगैरह दिया है उनके अलावा भी हमें बाकी सारी चीजें करनी पड़ती है। ओके, तो सी, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 35 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, और उनका मीन कितना है, 20 है। अभी मीन निकाल रहे हैं। ओके, सो मीन कैसा रहेगा, 35 ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे, बराबर, और उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 20 करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, मीन मिलेगा उन ऑब्जर्वेशन का। ठीक है ना, और क्या बताया है इन्होंने, आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, मतलब कि पहले 18 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीन कितना है, 15 है, और जो लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन कितना है, 25 है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट से लेके 17 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ओके, और ये 18 ऑब्जर्वेशन है, और 18 यहाँ पे 19 से लेके फिर से हमारे पास ऑब्जर्वेशन है अप टू 35। ओके, सो इस तरह के हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, समझ लीजिए। सो क्या बोला है इन्होंने, इन 30 का मतलब टोटल का ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 35 है। नो, इट इज 20, सॉरी, मैं अगर गलत हो जाऊँ तो आप मुझे बताया कीजिए। बताइए, देखिए ना, 35 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आएगा, 20 आएगा। और वहीं पे इन शुरू के 18 का, मतलब ये जो 18 ऑब्जर्वेशन है इनका मीन कितना है, 15 है। ओके, एंड सिमिलरली अभी लास्ट 18 यानी कि ये भी 18 इसमें आएगा। ओके, सो इन 18 नंबर्स का ऑब्जर्वेशन मीन कितना है, तो 25 है। ओके, तो पहले क्वेश्चन हमें समझ में आ जाना चाहिए कि
सारे ऑब्जर्वेशंस का 35 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 20, पहले 18 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 15, ओके, एंड लास्ट के जो 18 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 28, ठीक है। सो सी व्हाट वी कैन डू, मान लीजिए, ओके वेट, सी 1 to 17 प्लस एक्स, अभी 18th ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमें पता नहीं, ओके, 1 to 17 प्लस एक्स डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, 18 करेंगे, तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 15 आएगा। समझ रहे हो, शुरू के 17 ऑब्जर्वेशन प्लस द 18th वन, अभी मैंने 18th को क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो नाउ ओके वी विल ट्राई टू राइट लाइक दिस, सी एक्स प्लस 19th ऑब्जर्वेशन टू 35th ऑब्जर्वेशन, ओके। सो इनका डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे भी 18 ही करना पड़ेगा। सो इनका ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, तो 25 है, ओके। सो ये दो फॉर्मूला मैंने किस तरह से लिख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप लोगों को आसानी से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, किस तरह से, देखिए इसको ऐड करूंगा इसके साथ में, और इसको ऐड करूंगा मैं इसके साथ में, ओके। सी सो 1 to 17 प्लस एक्स प्लस 19 to 35 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय कितना आएगा, 18 ही आएगा, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो 18 ही आएगा ना। और ये 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ओके। चलो, तो अभी देखो, ओके, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, सी यहाँ पे 2x हो रहा है, तो 2x में से क्या करेंगे हम, एक x को बाजू निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 to 17 प्लस एक्स प्लस 19 to 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। अभी मैं 18 को यहाँ पे ले जाता हूँ, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 30 18 थ्री जा 54, 84 जा 72, मतलब कि 720 हो जाएगा, ओके। सो मैंने इसको इसमें फॉर्म कर लिया 720, ओके। नाउ सी ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द टर्म विच कैन बी कमिंग इन दिस ऑब्जर्वेशन, लाइक सी अगर मैं उन 35 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालता हूं, 1 to 17 प्लस एक्स प्लस 19 to 35 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा मुझे, 35 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 आएगा, ओके। सो मैं इस 35 को अगर इधर इधर भेज देता हूं तो कितना होगा, ये 700 होगा, ओके। सो मैं इसको यहाँ पे 700 लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो 700 मैंने यहाँ पे लिख लिया, मतलब ये जो हमारा टोटल है इसका क्या लिख सकते हैं हम, 700 लिख सकते हैं। सो देखो 1 to 17 प्लस एक्स प्लस 19 to 35, सी 1 प्लस 17 प्लस एक्स प्लस 19 to 35, सो इसकी जगह पे हम 700 लिख सकते हैं ना। सो 700 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 720, ओके। सो अगर ये 700 यहाँ पे चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 आएगा। नाउ व्हाट इज आवर एक्स, x is our 18th observation, where is that question, see okay, yeah, find the 18th observation, see it is here। तो x हमने मैं मान लिया था कि 18th ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 18 को मैंने 18th ऑब्जर्वेशन को मैंने x मान लिया था, तो इस तरह से मैंने सारी प्रोसीजर फॉलो की और x की वैल्यू क्या आई, 20 आई। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज दिस 10th क्वेश्चन। सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को समझ में आया है चैट बॉक्स में यस लिख यस लिख दीजिए, वेरी गुड। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग फिर से एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ओके, जिससे कि समझ में आ जाएगा, ओके। So I think that is it for today. I have another class, okay. So we will say bye bye now. Yeah, is it okay? Chalo, bye bye everyone. Just put the bye bye and leave the meeting. Okay, bye bye. Chalo.